हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ सी लैंग्वेज। सो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझने के लिए वी शुड एग्जैक्टली नो कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, राइट? व्हाट इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज? सो कंप्यूटर लैंग्वेज सीखने से पहले विल अंडरस्टैंड कि लैंग्वेज क्या होता है। एवरीबडी हैव listen to the word language. Now, language is used for communicating with the people, right? Now, whenever we are communicating with any of the people, we should know that language thoroughly. Now, when I say thoroughly, that means every language has a particular rules. Now, what kind of rules? Now, when I'm talking in English, I should be grammatically correct, right? So, when I'm talking about English language, it has a rule that it should be grammatically correct. So, we'll talk the rule as a grammar. Now, same ways when you are communicating with the machine and when you are learning any of the language, there are certain rules which we have to follow so that we can communicate with the system. Now, when I say a computer language, what exactly computer language is? Now, briefly I've said that it is just used for communicating with the computer. Now, why there is a requirement of communicating with the computer is, now if I want to perform a particular task, if I want this task to be performed, now I know how to perform that task, but for the more accuracy, for complex tasks, what I'll do, I want somebody to help me out to perform this task. Now assume our machine is the one who will help us to perform the task. Now for example, there is a person who wants to reach this destination and he doesn't know how to reach this. So what he'll do, he'll ask someone. Now assume ये इसको पूछ रहा है, ठीक है, that how to go to this destination. So वो क्या करेगा, वो गाइड करेगा, like step 1 go straight, step 2 turn left, and step 3 destination to the right. ठीक है. So what are doing, we are instructing that person. हम वो person को instruct कर रहे हैं कि वो ये destination से यहाँ तक कैसे पहुँचे, राइट? सो सेम वेज अगर ये पर्सन को कोई टास्क करवाना है मशीन से, तो वो पर्सन को पता है कि वो टास्क कैसे करना है, बट फॉर द मोर एक्यूरेसी, फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क और जो टास्क इजीली और इमीडिएटली कंप्लीट हो सके, इसलिए हम वो मशीन से करवाएंगे, ठीक है? तो हमें वो स्टेप्स पता है बट मशीन को वो स्टेप्स नहीं पता. सो व्हाट विल डू, सेम वेज जैसे ये पर्सन ने ये पर्सन को इंस्ट्रक्ट किया टू परफॉर्म अ टास्क फ्रॉम रीचिंग द सोर्स टू द डेस्टिनेशन, same ways what the user will do, what the programmer will do, it will instruct the machines by giving certain rules to perform a particular task, right? So this is a use for communicating with the machines, right? Now another example, अगर कोई दो दोस्त है जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है, अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त से बात कर रहा है एंड देन ही इज रिप्लाइंग समथिंग टू द पर्सन, दैट मीन्स बोथ आर कम्युनिकेटिंग, बिकॉज कम्युनिकेशन कोई एक वे नहीं हो सकता, ठीक है? सो सेम वेज व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विथ द मशीन, इट शुड बी टू वे. विल गिव सम इंस्ट्रक्शन, जो भी टास्क हम मशीन को दे रहे हैं मशीन हमें पूरा करके हमें वापस दे रहा है. सो इट इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन. नाउ ये टास्क हम भी कर सकते हैं, तो मशीन से क्यों? एज आई मैंशन अर्लियर, कोई टास्क ईजी हो या कोई टास्क डिफिकल्ट हो, वी शुड एनालाइज वेदर वी कैन परफॉर्म और वेदर इट कैन बी डन बाय द मशीन. ना अगर मैं कहूँ आपको कि प्लीज़ कैलकुलेट 4 into 2,
आप इमीडिएटली बोलोगे उसका आंसर 8 है बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट, राइट. इफ आई से 497288 मल्टीप्लाइड बाय 427689, so what is the answer for this? ऑफ कोर्स ये कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, हम मैन्युअली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. बट मैन्युअली जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसके दो चीज़ हो सकते हैं. वन विल गेट द करेक्ट आंसर and one will get correct answer with less accuracy. Now less accuracy means, if now when you're manually calculating, if I miss some number, I can get a less accuracy answer, or we can say wrong answer, right? But if I'm doing this with any kind of machine, I'll get the accurate answers, right? So now when I'm taking the example of a number, what you'll do, if I'm giving you this question to solve, आप क्या करोगे, आप एक calculator ले लोगे, right? It is an electronic device, it is a machine. So what you'll do, in the calculator, using different keys, you will enter the number, you will put the calculations, right? Equal to press karoge and directly you will get the answer on the screen, and it will be 100% accurate. It will be exactly correct answer, right? So that is a use for communicating with the machines. Now यहाँ पे तो ये इंटरफेस बन गया. वी जस्ट हैव अ मशीन, उन्होंने कीज दे दी है, हम जस्ट एंटर करेंगे और इमीडिएटली आउटपुट मिलेगा. नाउ व्हेन you have to develop a big kind of application, जैसे गेम्स हो, कोई इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशंस हो, या फिर कोई ट्रेन बुकिंग एप्लीकेशंस हो, उसके लिए हमें प्रोग्राम करना होता है. सो प्रोग्राम क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला, एक पर्सन को कुछ टास्क कंप्लीट करना है मशीन से, तो हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, राइट? सो वी कैन से a program is a set of instruction given by the user or given by the programmer to the machine to perform a particular task. That is a program. Now जैसे मैंने यहाँ कहा कि दो पर्सन है जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं. अगर ये इंग्लिश में बात करा और ये भी इंग्लिश में बात करा तो दोनों का कम्युनिकेशन विल बी वेरी इजी, राइट? नाउ हमें ये समझना है कि पहले मशीन कौन सी लैंग्वेज समझता है. तो मशीन सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, जो है कॉम्बिनेशन ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस. 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1. दिस इज़ अ लैंग्वेज विच योर कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स. बट अभी ये सवाल आता है कि क्या ये लैंग्वेज प्रोग्रामर समझ आता है? नहीं, ये लैंग्वेज हम नहीं समझ पाते. सो हम कौन सी लैंग्वेज समझ पाते हैं? जो हाई लेवल, लाइक इंग्लिश, मराठी, हिंदी. सो जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे, हम हमेशा प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे. नाउ हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? इंग्लिश. नाउ whenever I'll write any of the program, I'll write only in English. Now assume if I'm taking a number in A and if I'm taking a number in B, what I'll do, I just want the addition of these two numbers, और मैं इसको कोई एक इसमें स्टोर कर रही हूँ और मेरे को बस ये नंबर को प्रिंट करना है. दिस इज माई स्मॉल प्रोग्राम. Now A, B, C, print, these all are English words, right? So this is a program which is written in high level language. Now whatever the thing I've written here, this is a task, this is a set of instruction. That is, the first instruction is put 2 in A, second is put 3 in B, फिर 2 and 3 को एडिशन करके C में पुट करना है एंड देन C को प्रिंट करना है. ये हमारा एक छोटा सा टास्क है, ठीक है. नाउ ये हमें कंप्यूटर को देना है, फॉर एग्जांपल मशीन को देना है ये टास्क पूरा करने के लिए. बट क्या मशीन इसको समझ पाएगा? मशीन ये नहीं समझ सकता. मशीन विल नॉट अंडरस्टैंड योर हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है. सो अभी करेंगे क्या? टास्क भी तो पूरा करना है
और लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम है। प्रोग्रामर एंड मशीन, प्रोग्रामर 1 0 नहीं समझ सकता एंड मशीन हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझ सकता। नाउ फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट ट्रैवलिंग टू अनदर कंट्री, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ आई से अमेरिका एंड आई एम द पर्सन हु अंडरस्टैंड्स सिर्फ हिंदी एंड यहाँ के जो लोग हैं दोज अंडरस्टैंड्स ओनली इंग्लिश। तो अभी प्रॉब्लम क्या होगा, अगर हम वहाँ जा रहे हैं, सो वट एवर द थिंग विल बी कम्युनिकेटिंग विद द पीपल, वी शुड कम्युनिकेट विद इंग्लिश, बिकॉज हिंदी पर्सन को इंग्लिश समझ नहीं आ रही है और इंग्लिश वालों को हिंदी समझ में नहीं आ रहा है। सो व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट और हु विल बी द मीडिएटर हियर इज, हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होगी, ठीक है। ट्रांसलेटर जो हिंदी में समझे और उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में उनको समझे, और जो ये बोल रहे हैं दैट इट विल ग्रास्प इन इंग्लिश एंड इट विल ट्रांसलेट इन हिंदी, राइट। ट्रांसलेटर की वजह से दोनों में कम्युनिकेशन प्रॉपर हो सकता है और दोनों को समझ आ सकता है कि एक दूसरे को क्या बोलना चाहते हैं और क्या समझना चाहते हैं। सो सेम वेज व्हेन द थिंग कम्स, जब हम मशीन और प्रोग्राम के बीच में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, सो देयर कम्स अ रोल ऑफ अ कंपाइलर। नाउ कंपाइलर ये होता है विच इज सेम एज अ ट्रांसलेटर। नाउ कंपाइलर क्या होता है, इट इज़ अ प्री डिफाइंड प्रोग्राम विच इज़ ऑलरेडी देयर, ये पहले से ही होता है, जिसका काम क्या है, जो हाई लेवल लैंग्वेज, जो इंग्लिश लेवल लैंग्वेज है वो कंपाइल करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में। सो यहाँ से इट विल टेक हाई लेवल लैंग्वेज और यहाँ में उसको देगा लो लेवल लैंग्वेज, दैट इज वंस एंड जीरोस। सो तब ये मशीन उसको कोड करके टास्क करके इट विल गिव अस द आउटपुट, ठीक है। नाउ ये सब करने की ज़रूरत होती क्यों है, लाइक वाई वी नीड टू कम्युनिकेट विद द मशीन्स, हमें ये प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत क्यों होती है। नाउ जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल्स, हमें कोई गेम्स बनानी हो, हमें कोई ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशंस बनानी हो या फिर ऑनलाइन टिकट बुकिंग एप्लीकेशंस बनानी हो, सो व्हेनेवर वी जस्ट सी द इंटरफेस, ठीक है। अगर हमें कोई इंटरनेट बैंकिंग करनी हो, सो हम वो एप्लीकेशन में जाएंगे, विल सी ऑल दोज थिंग्स, अकाउंट नंबर, देन होम टू पे, account details we need to put. So that interface is made by the programmer using any of the programming language, ठीक है। और ये किसे देते हैं हम, क्लाइंट को। Now assume SBI have asked this programmer to create an application for their net banking for their clients. So programmer what will do, he'll program and he'll give you the interface, and those application can be used by the SBI clients. Now whenever there is a problem in the interface, it is not the SBI person who will handle, it is a programmer who will handle. But programmer is making for whom is for the clients. So for that reason we have to learn the programming languages so that we can develop different kind of applications which is required by your clients. So that is the explanation of what is a language, what is a programming language, and why it is required to learn any programming language, and what is the requirement of communicating with the machines, and what is the requirement or what is the importance of compiler, and at the end what is the main motto of a programmer to learn any kind of language. So these are the concepts for my first video. I hope you have liked it. Thank you.